بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں, عاجزی سے التجا کر رہے ہیں, تو رب ہے رحمت ہے کام تیرا, تجھ سے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. پروگرام ہے شوبی اسپیشل اور میں ہوں شکیل زاہد. آج شوبی اسپیشل میں بہت کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میرا ایک بہت ہی پیارا بھائی, میرا بہت اچھا دوست, اور دنیا کے لیے وہ سپر سٹار ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عزت دی ہے, جتنی شہرت دی ہے, وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ عزت اور شہرت میں جو ہے سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اتنی عزت اور شہرت دی ہو کہ وہ جہاں جاتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے کوئی سیلفی کے لیے اور تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے ترستے ہیں. بلکہ میں اگر یہ بتاؤں کہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اپنے پروگرام میں یا جو کچھ بھی وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے. جی بالکل, آج میرے ساتھ موجود ہو میرے پیارے سے دوست, میرے بھائی یاسر شامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ, اور اتنے اچھے الفاظ کے لیے تو آپ کا میں مداح ہوں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. اور میری دوسری گیسٹ جناب, آپ کو پتا ہے کہ میوزک کا تڑکا نہ لگے تو شو بھی اسپیشل نہیں ہوتا. اور اگر میوزک کی بات کی جائے تو اس میں بات آتی ہے مغرور لیلا کی. اگر ینگسٹرز جو ہمارے مغرور لیلا کو الگ کر دیں تو پھر ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم سایہ ملک میں بھی مغرور لیلا پہنچ گئی ہے. اور آج شو بھی اسپیشل میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مغرور لیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کے اس پروگرام میں آ کر, اور اتنا پیارا آپ کا گیسٹ ہے آج جو جس کے ہم بھی فین ہیں, آپ نے بلایا. اور آپ تو ویسے ہمیں پہلے سے پیارے ہیں, لیکن آپ چار چاند لگے. میں آپ کا فین ہوں اور میں تو بچپن سے آپ کے گانے. ہاں ویسے یہ بچپن سے کہہ رہے ہیں. ایک 70 سال کا بابا مجھے ایک شو میں ملا, کہتا جی میں نا بچپن سے نا آپ کا فین ہوں. میں نے پھر کہا کہ بزرگوار آپ نے ویسے کام ہلکا رکھا ہے, ایک بندہ ایسے بھی ہے, میں نے اسے کہا پیدائش سے پہلے بھی میرے فین تھے. 70 کا نہیں تھا, اس نے بچپن کا ذکر اس لیے کہ وہ 55 کا تھا. اس نے کہا کہ وہ 55 سے آپ کا فین ہے. نو ڈاؤٹ ان کا بچپن سے کہا تھا. سفید بال تھے سارے. جو میرے ساتھ بندہ کھڑا تھا وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا. وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے, میں نے کہا بس خوش ہونے دو چاچا جی کو. تو نہیں, ان سے ایک دوستی کا بھی ایک نہیں, لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے یہ تو خیر ینگ بالکل ہے اسٹل, لیکن ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں جو بالکل بزرگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بچپن سے ہم آپ کو سن رہے ہیں. اتنا ماشاءاللہ چھوٹا ہے, میرا اپنا اس کو گود لینے کو دل کرتا ہے. صحیح بات ہے, جس 10 سال کا. نہیں یہ تو ماشاءاللہ نہیں, یہ تو خیر ماشاءاللہ نہیں, ینگ ہے. میں ویسے آپ کو بات کر رہی ہوں, مجھے شو میں بزرگ خواتین بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم بچپن سے آپ کے گانے سنے, آپ تو ویسے کی ویسی ہیں, ہم بزرگ ہو گئے. میں نے کہا ہاں میں نے کہا ویسے. اصل میں ایسا ہے ہمارا جی, ہوتا یہ ہے کہ جو فین ہوتا ہے نا جی کہ وہ اس کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے اس نے کل سے اس کو سب سمجھتا ہے کہ یہ میں شاید اس کو شروع سے میں اس کا فین ہوں, ایسے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے. اچھا یاسر, آپ بتاؤ کہ ماشاءاللہ اللہ نے جتنی آپ کو شہرت دی, جتنی عزت دی, بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ پاپولر ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یار ہمارے ڈرامے میں کام کرو, ہماری فلم میں کام کرو. تو کبھی تمہیں نہیں اس طرح سے آفر ہوئی؟ نہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب تم جرنلسٹ نہیں لگتے, تم ایک ایکٹر لگتے ہو. تم وہ جرنلزم ذرا میرا ایک پیشن ہے, انفرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ, تو وہ کہیں نہ کہیں کڑیاں ملتی ہیں آپس میں. تو لیکن اگر مجھے کہیں اچھی آفر آئے گی, کانٹینٹ اچھا ہوگا. جی جناب, دیکھ لیں جو اچھے فلم میکر ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یاسر نے جو ہے آمادگی ظاہر کر دی ہے. دیکھیں ہمارے شو کا اتنا تو اسپیشل کام ہونا چاہیے نا سر, آپ اسپیشل ہی کر رہے ہیں. نگینے جو ہیں وہ چن چن کر اپنی فلم انڈسٹری کو دیں, اپنے کلچر کو دیں, اپنی ثقافت کو دیں. اچھا یاسر, آپ نے بہت کام کیا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ بہت ہی عظیم کام ہے. آپ بہت سے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہو. اس دنیا کے مسائل کے, ان لوگوں کے مسائل آپ کے جب آپ کے پروگرام میں آتے ہیں تو ان کے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو ایک سوشل پہلو آپ کا اس میں نظر آتا ہے. بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ کام بڑا نہیں ہے, دعائیں بڑی ہیں میرے ساتھ, تو اس کی وجہ سے وہ کام بھی نکھر گیا ہوا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ اپنا کام دوبارہ دیکھیں تو I can not see again and again my work. تو یہ کچھ دعائیں بڑی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے کام کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر میری زبان ہلانے سے کسی غریب آدمی کا, کسی چھوٹے بندے کا کام ہو جاتا ہے تو اصل میں پھر میں نے حق اپنا ادا کر. کیا بات, ویری گڈ. کہ سب لوگ اگر جرنلزم کو یہ سوچ کر کریں کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور لوگوں کے مسائل جو حل کرنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل جو خود بخود حل ہو جائیں گے. بے شک ایسے ہی. اچھا نوانا جی, آپ بتائیے کہ آپ کا وہ میرا بھی مسئلہ حل کرانا ہے کہ انہوں نے آپ کر میرا, وگرنہ آپ اور میں کمائے جائیں گے دنیا سے. نہیں, مجھے غیرت مند کی تلاش ہے. غیرت مند
शोहर की। गैरत मंद की तलाश है। हाँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा शो सुल्तान बिजनेस साहब तो फौत हो गए कब के, नहीं, जो नहीं। कहते थे कि ओए दुपट्टा वापस कर दे। नहीं दुपट्टे तक बात नहीं है। नहीं बात नगमा ये- जी आपकी वाकई शादी नहीं हुई? नहीं ना, मुझे गैरतमंद की तलाश है, इनको पता है हम दोनों ढूंढ रहे हैं, वरना हम तुम्हारे जाएंगे दुनिया से। अभी हम सवाबी मर्दान की तरफ जाएंगे, वहां बड़ा गैरतमंद। अच्छा 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 चलेंगे आपके लिए कोई अच्छा सा क्योंकि रिश्ता इसलिए ढूंढना। कि देखें बात पता क्या है, आप अक्लमंद है, जो भी वर्किंग लेडी होती है ना, वर्किंग जी जी बदनसीब बड़ी है हमारे मुल्क में। पूछें क्यों? क्योंकि जो भी उससे मोहब्बत करता है ना, लालच की वजह से करता है, या तो उसके जाहिरी हुस्न की वजह से, हुस्न तो मेरे पास नहीं, लेकिन जाहिरी उसके यानी कि उसके काम की वजह से बड़ा पैसा कमाती है। और कई बंदे मुझे माशाल्लाह कहते प्यारी आप नहीं एक मिनट, नहीं कई लोग मेरी बात सुने, लोग पहले मेरी बात सुने। पहले मेरी शोबी स्पेशल में आप हुस्न के बगैर आ गई। नहीं ये हुस्न जरूरी नहीं है। देखें मेरी बात सुने, लोग ये समझते हैं मेरे पास करोड़ों रुपया है, हाँ। तो लालची हजरात जरूरतमंद बड़े आते हैं, गैरतमंद कोई नहीं आता, तो जरूरतमंद से मैं शादी नहीं कर सकती। सही बात है। यानी अच्छा, उसको मुझे इनका मैं ऑन बोर्ड आज बता रहा हूँ, मैं इनका इंशाल्लाह हल करूंगा मसला, इनका भी और इनका भी, इनका रिश्ता और इनका फरिश्ता। ये देख लें जी, और देख मेरा लें फरिश्ता। फैंस देख लें, ये कई लोगों के काम आए शामी। ये आप देख लें वादा आपके नहीं, डिमांड कैसे लड़का कैसा इमरान खान वाला वादा ना हो कहीं। नहीं लड़का कैसा होना चाहिए आपकी डिमांड लड़का क्या है? नहीं, लड़के से मैं शादी नहीं करनी, जरा समझदार नहीं, आदमी लड़के हो। से करनी है, क्या होगा? नहीं हाँ। समझदार बंदा हो, जिसको वैल्यूज का पता हो, औरत की इज्जत का पता हो, शरीफ इंसान हो, और वो कोई नशे नुशे ना करता हो, ठीक है। और उसको इसके अंदर इंसानियत जो का जज्बा होना चाहिए, यानी कि वो कोई खुद गर्ल्स टाइप नहीं जो लोग होते वैसा ना हो। थत्था ना हो, मतलब नहीं थत्ता तुत्ते की बात नहीं है, यानी कि शक्ल उसकी अच्छा लड़का हो लेकिन नशा ना करता हो, थत्ता हो तो चल जाएगा। नहीं थत्ते से बात नहीं करनी। वो कहती है थत्था ना हो पक्का हो। नहीं बात है कि पक्का हो। मैंने प्रॉमिस किया नगमा बस, और इंशाल्लाह ये देख ले जी, आप मगरूर ले लें और इंशाल्लाह आपके लिए कोई हम अच्छा सा मगरूर सा कोई शख्स ढूंढेंगे। गैरतमंद जरूरतमंद नहीं। इंशाल्लाह। देखें शकील जायद और मैं की कश्ती के सवारे नहीं तो हम कमारे चले जाएंगे इस दुनिया से। नहीं 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 इंशाल्लाह। और क्या वो खुदा का नाम लो, इस तरह तो कश्ती में सुराख हो जाएगा। तो मेरी बात सुनिए, इनकी शादी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, तो क्या ये है भी गैरतमंद भी है। अच्छा है? साइड पोज इनका इतना प्यारा, देखें जरा कैमरे पे साइड पोज दिखाएं जरा। दिखाएं जरा, प्रोग्राम किस तरह चला गया, दिखाएं जरा। ये प्रोग्राम हमारा किस तरह चला गया भाई। माशाल्लाह बहुत नहीं अच्छे। साइड पर दिखाएं, दिखाएं जरा। आपने इनको रात को 2 बजे भी कहना ना सूरज चढ़ा हुआ है, इन्होंने आगे से बात ही नहीं करनी। इन्होंने अच्छा। कहा, ओके बहुत शुरादे हैं। मेरे बराबर में जो उसका नाम है सूरज खान, वो कभी कभी छत पे चढ़ा होता है रात को 2 बजे। तो मैं मान लूंगा कि हाँ यार चढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अच्छा बात, प्रोग्राम जो है वो किसी और ही तरफ जा रहा है। नहीं तो अच्छी बात है ना, किसी और तो नेकी की तरफ जा रहा है। नेकी का काम जो किसी ने नहीं किया, इसने सोचा हमारे मेरे बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जनाब काजी साहब आए हैं काजी कहाँ है? और वो उसके ऊपर लिखा हो जालिमो काजी आ रहा है। ऐसे है, नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह। ये चले लेकिन लोग मुझसे ये सवाल बहुत करते हैं कि लाखों फैन है तुम्हारे, लाखों तुम्हारे चाहने वाले हैं, पुरस्कार है, तुम अकेली रहती हो। मैंने कहा देखें ये जो फैन होते हैं ना, ये बस कॉस्मेटिक लोग होते हैं, ये बस वहीं तक होते हैं कि ये आपसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन इनके दिलों में इज्जत नहीं हमारे लिए। मोहब्बत करते हैं, शादी नहीं करते। शादी नहीं करते क्योंकि इज्जत नहीं करते ना। वो कहते हैं कि जो शो बिजनेस की औरत सर लुट के खा जाएगी साढ़े पुत्र नू, ये नहीं पता कि वही मजलूम औरत है, जो कमाने वाली कोई भी औरत हो वो मजलूम औरत है हमारे मुआशरे की, ये याद देखिए रखें। बात। और जो घरों में बैठने वाली औरतें वो जालिम है, शौहर को निचोड़ लेती हैं, उनका वो ज्यादा निचोड़ के औरतें पी घरों में जाती बैठ के हैं। देख रही हैं। ठीक है, सुनती रहे और सुनती जालिम कह रहे। रही हो, वो देखो नहीं, देखिए आपको मैं नहीं बताती हूँ कहा, ना, आपको नहीं कहा। वर्किंग लेडी आपको नहीं कहा। देखिए वर्किंग लेडी जो है ना वो इसलिए मजलूम है कि मुआशरा भी उसको उस पर उंगली उठाता है। फिर पहले वो अपने घर वालों के लिए कमाती है, फिर शोहर के खानदान के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए कमाती है, फिर भी वही बुरी है, सही बात। उसका कोई अरमान नहीं होता। अभी देखें जी, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। अभी आपने बताया कि आपको यहाँ पे भी, हमसाया मुल्क में भी, हर पूरी दुनिया में लोग प्यार करते हैं। जी वो प्यार करते हैं तो बस। बस कोई अगर एक अदना बुरा कह भी देता है उसमें कौन सी बात। पर नहीं प्यार, देखें प्यार के साथ वो कह रहे प्यार करते हैं, शादी भी करें। कहने का इज्जत मतलब भी ये। करें ना, घर जाके कहने लग जाए लो जी तस्वीरें खिंचवाई हैं, ये ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, बस देखें इज्जत जरूरी है पहले, और औरत की तो इज्जत जरूरी है, बेशक। चाहे वो कैसी क्यों ना हो। हमारा इस्लाम भी कहता है कि औरत जैसी मर्जी हो, हमें ये जरूरत नहीं है कि हम उससे कहें जहन्नुमी है, ये गाने गाती है, ये जहन्नुमी है। सही बात। और मुझे जब मैं लाइव आती हूँ, नहीं जब मैं नहीं, मेरे पर भड़ास है, जब मैं लाइव आती हूँ ना अपने पेज पर, तो मर्द हजरात मुझे पता क्या कहते हैं, बीबी तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं, तुमने जहन्नुम में जाना है, बीबी चलो घर बैठो तुम। मैंने कहा भाई मेरे
तुम इतने अगर गैरतमंद हो ना, मुझे महीने के 60,000 भेज दो, बिल दे दो जो इमरान खान ने इतने ज्यादा भेजे हैं, वो तुम दे दो, मैं घर बैठ जाती हूँ। सही बात है, औरत की फीलिंग से खेलने से बेहतर इंसान कैंचे खेले। नहीं, मैं कैंचे खेलूंगी, लेकिन मैं इन आदमियों के साथ खेलूंगी। ये जो आदमी मुझे कह रहे हैं गैरत का सबक सिखा रहे हैं। ऐसा है कि हाँ जी। आप हमारे दिल में बहुत एहतराम है। आप तो अपने दोस्त हैं ना। इससे ज्यादा एहतराम जो है, मेरा नहीं ख्याल कि औरत से ज्यादा एहतराम किसी का होता होगा। हम जितना एहतराम हमारे माशरे में, हमारे जो है दीन में सिखाया गया है, कि जितनी इज्जत हमारे दीन में एहतराम से बताई गई है खातून की, औरत की, वो पूरी दुनिया में किसी दीन में नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको शोबी स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ी अच्छी बातें जो हो रही थी, और उसमें कुछ बातें रह भी गई थी कि जो हमने पूछनी थी यासिर से। यासिर, ये स्टारडम कैसा लगता है कि जब हर जगह जाते हो? अभी परसों भी हम लोग इकट्ठे थे पीसी में, तो मैं बड़ा जेलस हुआ आपस की बात कि वो बंदा एक मेरा ही जानने वाला था, तो उनके साथ कह रहा तस्वीर बनवानी, तो मुझे कहता आप साइड पे हो जाओ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई। तो मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, इतना प्यार करते हैं, तो ये ऐसा लगता है, ये कभी सोचा था? अच्छा महसूस होता है। दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई, अब जिस फील्ड में भी है, वो प्रोमिनेंट होने के लिए काम करता है। हम मीडिया में हैं, हम प्रोमिनेंट होने के लिए काम करते हैं। ये शोबिज में है, इनकी कोशिश होगी इनसे अच्छा कोई सिंगर ही ना हो, आपकी कोशिश होगी आपसे अच्छा कोई होस्ट ही ना हो। तो हर शख्स जो है वो प्रोमिनेंसी चाहता है, तो वो जब मिलती है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो लेकिन कभी कभी इंसान उकता भी जाता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक तकवीज करदा अता है, मोहब्बत है। जमीनी सफर पर कोई चीज आसमान है तो वो मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत फैंस की सूरत में आपको मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो किसकी दुआ है ये? कौन आपके बिहाइंड द सीन कि जिसकी दुआ आपको जो है यहाँ तक ले आई है? आपने कहा कि दुआओं से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बस आपको पता, वो आपके दोस्त भी हैं, तो मैं चाहता हूँ बताएं बाबा जी के बारे में ना, वो क्योंकि तो वो सैयद ज़ादे हैं, सैयद शहबाज शाह साहब। शहबाज शाह साहब अल्लाह तो ताला बड़ी सेहत तंदुरुस्ती दे, और बड़ी मोहब्बत करते हैं खासतौर पर फनकारों से। और वैसे भी सैयदों के घर से ही सब कुछ मिला, मेरा तो एतकाद है। तो बेशक उनकी बदौलत सब कुछ है। मैं खुद नाम मैं चाह रहा था कि आप लें, तो इसलिए मैं खुद चाह रहा था बाबा, मैं चाह रहा था कि आप लें, तो इसलिए आपने ले लिया। क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी एहतराम की जगह है वो, और अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों को हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे जो हमारे लिए दुआ करते हैं। क्योंकि इस वक्त नहीं, दुआ नहीं करते, मुझे लगता है काम ही करते हैं, उनकी दुआ ही काम होती है ना। ऐसे ही, जिसको दुआ देते हैं वो काम ही हो जाता है उसका ना, उसी तरह। तो ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में, और सारा कुछ त्याग के, सारा कुछ छोड़ के वो सिर्फ जो है दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको हमेशा सलामत रखे। अच्छा नवाना जी, आपके भी साथ कोई इस तरह की दुआ का सिलसिला कुछ? देखिए, मैं तो पहले ये समझती हूँ कि जिसकी माँ जिंदा है, माँ से बड़ा कोई पीर नहीं। जिसकी माँ जिंदा हो ना, उससे बड़ा कोई पीर नहीं, माँ से बड़ा। लेकिन अगर माँ नहीं रही तो फिर ये कि जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि ऐसे सैयद हैं मौजूद, और ये बड़े मुश्किल से ऐसे जो है लोग नजर आते हैं, मिलते हैं किसी किसी को। यानी कि आम तो बहुत पीर है, आपको पता है हर दूसरा बंदा पीर है आजकल के जमाने में, पीर ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मेरी भी ख्वाहिश है, इनका मैंने नाम पहले भी सुना है, इनसे मिलने की। ये सैयद बादशाह है, लेकिन मैं मिल नहीं सकी। और पहले भी किसी ने जिक्र किया था कि नगमाना तुम जरूर मिलो, तो मैं मिलूंगी तो जरूर। लेकिन ये कि हम तो उन्हीं हस्तियों के मानने वाले, उनके दर के भिखारियों से भी छोटे हैं हम, जिन हस्तियों को मानने वाले, तो उन्हीं से हम यानी कि दुआ मांगते हैं, उन्हीं को वसीला बनाकर। लेकिन जो उनके इस तरह के सैयद उनके मौजूद हैं उनकी लड़ियों में से ही, वो भी काबिल इज्जत और काबिल इस्ताइश है, उनकी दुआ हमारे लिए, और ये ब्लेसिंग है, हमारी ब्लेसिंग है। और मेरी माँ भी दुनिया में मौजूद अब क्यों नहीं है, तो जाहिर है फिर इंसान को ऐसे किसी बुजुर्ग की दुआ चाहिए, और खासकर उस इंसान को कि जिसकी बैक पर ना बहुत सारे लोग ना हो उसका साथ देने के लिए उसकी फील्ड में। यानी कि ना कोई उसका घर वाला साथ दे रहा हो, ना कोई पराया साथ दे रहा हो, और वो अकेला जंग लड़ रहा हो जिंदगी की, उसके लिए ऐसा बुजुर्ग होना जरूरी है। दुआ बल्कि हर एक के लिए होना चाहिए, हर एक के, क्योंकि वगरना देखा ही गया है, बदल देती है। देखें, वगरना शो बिजनेस में हमारे पाकिस्तान देखा गया कि अगर एक बंदा घर का शो बिजनेस में, तो पूरा घर लग जाता है उसे एडिट करने के लिए। कोई उसकी तस्वीर एडिट कर रहा है, कोई उसको इंस्टाग्राम पर दे रहा है, कोई उसको। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिसके पीछे कोई नहीं होता, ना घर वाला और ना बाहर वाला, उसके सर पे बस अल्लाह होता है। वो तो जिसके साथ अल्लाह है उसको मिल जाती है, बस जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ तो हर चीज ये है कि मुझे लोग कहते हैं कि जी तुम्हें जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें कोक स्टूडियो और तुम्हें फलानी जगह पे गाना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हारा वहां होना चाहिए था मकाम। मैंने उनसे कहा देखें, बात ये है कि कुछ फैसले मुकद्दर के होते हैं,
मुकद्दर भी बड़ी चीज है ना. देखें अगर किस्मत खुद इंसान बनाता होता अपनी कोशिश से तो कोई ना रोता. कौन सा इंसान है रोना चाहता है. सही सही. तो हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन अपने मुकद्दर को हम नहीं बदल सकते. जाहिर है वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है. लड़का कैसा चाहिए वैसे आप? लड़का मुझे ऐसा चाहिए जो कि शरीफ से मुराद ये नहीं कि वो तस्वीरें पकड़ के फिरने वाला शरीफ होता है. एज कितनी है आपकी? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए किसकी एज. औरत से नहीं पूछना चाहिए उसकी एज, मैं इसलिए लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ. देखिए एज तो कभी कोई सच बताता ही नहीं. फिर भी आपकी कितनी एज है? मेरी 38. 38? 37 36 37 की लगती है, 38 की लगती है. वैसे लोग भी 25 साल के कहते हैं. लोग कहते हैं वो, इनको ऐसे ही लोग चाहिए. नहीं जो उनको 25 नहीं लेकिन नहीं 36 37 की लगती है. देखिए मेरी बात सुने, जो भी कहते रहे बेशक मुझे 20 साल के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बात ये है कि मैं मैच्योर इंसान के साथ नहीं गुजार सकती हूँ. ठीक है. इमेच्योर इंसान नहीं जो अभी यहाँ से उठ के नहीं 50 साल की बात नहीं, उम्र की कोई बात नहीं. देखिए मेंटल लेवल इंसान का मिलना चाहिए. सही. अब बाहर के ये हमारे मुल्क में उम्रों की बातें हैं. अब अगर आप गोरों के पास जाए ना कभी उम्र नहीं देखते. सही बात. वो देखते हैं कि उनका मेंटल लेवल किससे मिल रहा है, उससे शादी कर लेते हैं. हमारे मुल्कों में देखिए अनुसी बातें जो इस्लाम को छोड़कर. मुझे बताएं इस्लाम में पहली शादी जो की उन्होंने हमारे प्यारे नबी ने अपने से बड़ी से की. आज का लड़का अगर अपनी माँ को कहना कि मैंने अपने से कुछ 4 साल बड़ी से शादी, ओ अच्छी तो मुंह खान दे काबल नहीं रवांगे, तू लीक लान लगा साढ़े खानदानों इन्नी बड़ी नाल शादी करके. तो कहाँ है इनका इस्लाम? इनकी सुनते बस वहां तक है कि 4 शादियां कर लो. यही सुन्नत इनको याद है पाकिस्तान के मुसलमानों को. यानी आप इसका मतलब है जिसे शादी करेंगे उसको 4 की इजाजत देंगी? नहीं मैं तो दे दूंगी. पता है क्यों दूंगी? क्योंकि अगर किसी बीवी का शौहर उसकी इजाजत ना होते हुए बाहर गलत काम करता है गुनाह, तो उस बीवी का गिरबान पकड़ेगा खुदा कि बीबी तू ऐसा किया तेरा बंदा गया ऐसी बात दूसरा काम करने निकाह करने देती. नहीं कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसको कहेगी जावे पहले नहीं देखिए मेरी वजह से गुनाह करेगा. देखिए मेरी वजह से मेरा शौहर गुनाह करेगा, वो फिर कई औरतों की जिंदगी खराब करेगा. तो उसमें हाथ किसका होगा? मेरा. क्योंकि मैं उसे कह रहा हूँ निकाह ना कर, बाकी जो मर्जी कर. ये अमूमन बीवियां कहती हैं घरों की. तो और माएं बेटों को कहती हैं कि तू मुंह जहां मर्जी बेटा काला कर, शादी तू कजन नाल करनी है, फुप्पी गुड़ी नाल. तो वो माएं भी जहन्नुमी है, ये याद रखना. अच्छा, और वो बीवियां भी. हमने ये भी देखा है कि हमारी जो बहनें हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारी गोरी चिट्टी भाभी हो, चाहे भाई का मुंह हैंगर जैसा ही हो. हैंगर जैसा हो, चाहे वो आलू बेचता हो, कतरीना कैफ जैसी भाभी हो, काम सारे घर के करती हो, कपड़े सीने उसे आते हो, हांडियां पकानी उसे सारी आती हो, और उसकी एजुकेशन भी बड़ी हाई हो, जहेज भी बहुत ज्यादा लेके आए, भाई चाहे फकीर है. अच्छा, हमारी माओ की भी डिमांड होती है कि पानी पीती हो हमारी बहू तो यहाँ से नजर आए, चाहे बेटे का मुंह गली की नुक्कर जैसा ही तो वो बड़ा अजीब सा लगता है. तो बात ये कि पाकिस्तानी मुआशरा मैं बड़े उससे कहूंगी कि मुनाफिकत पे बेस करता है. अच्छा चलें हम टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं. हम किसी को आईना दिखाने वाले तो नहीं है. सही बात. फिर भी कि बात फिर भी जो होती है वो कही जाती है. अच्छा मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हो. पिछले दिनों एक आपने वो कारी साहब थे, क्या नाम था उनका? मौलवी साहब थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नासिर मदनी साहब. नासिर मदनी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे. अच्छा, तो उनसे बात करने मिली थी मैं उनसे बात कर लें. नहीं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनकी ना उनका अंदाज बड़ा पसंद है. नासिर मदनी साहब से बात नहीं वो माशाल्लाह शादीशुदा है. तो दूसरी शादी के बाद में कहा तो आपने बात नहीं वो तो अब उनको पता होगा. शकील ज़ैदी साहब से कल, ये भी तो बेचारे खुद भी तो जरूरतमंद भी है, गैरतमंद भी है. मैंने इस नजर से कभी नहीं देखा. हाँ अच्छा. ये अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था कि वो बड़ा अच्छा. आप शर्मा जाते हैं शादी की बात में वैसे. जी बिल्कुल. तो अच्छी बात है, शरीफ वो पहचाने की कैसे ही शर्माऊंगा नहीं तो. अच्छा वो नासिर मदनी साहब के साथ आपने किया था और वो लगा कि आप मतलब इधर नासिर मदनी थे, इधर आप बैठे थे, लेकिन लग रहा था कि इधर नासिर मदनी है, इधर यासिर शामी. अच्छा वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो बस उनका इंटरव्यू किया, वो क्लिक कर गया, अच्छा लगा सबको. लेकिन वो आलिम दीन है, मैं उनकी बहुत बहुत अच्छे और सादा लफ्जों में बात समझा देते हैं, बहुत अच्छे. थोड़ी सी अब ये नेशनल टेलीविजन है, बड़े इश्यूज मसले मसाइल हैं, वो रहने से कोई और करवा ले मेरा ख्याल है. तो और क्या करेंगे बताएं कुछ करेंगे. चलें आप सिर्फ आपकी मोहब्बत में वो जो आपकी प्रोड्यूसर हैं सालिहा साहिबा, मेरी बड़ी अच्छी बहन भी है, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं कर देता हूँ. और सिर्फ एक हाशमी साहब की, आप एंकर हैं, आप हामिद भी हैं और हाशमी साहब आपके सामने बैठे हैं. ठीक है, आप क्यूरीज पूछें क्या? ठीक है क्या है? जी बताइएगा हाशमी साहब कि आजकल जो सियासत वो कैसी चल रही है? सियासत तो बहुत अच्छी चली है, लेकिन आप पैंट कोट पहन के मेरे आगे ऐसे बैठे हैं जैसे इमरान हाशमी आपके आगे बैठा है. देखिए मेरा नाम
जवेद हाशमी हैं और ये अजीब सी ये आपने जुबान भाई निकाली हुई है, टाई क्या लगाया हुआ है, ये प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। और नगमा आपकी शादी मैंने करवानी है इंशाल्लाह। आज 60 साल का लड़का हो, ना मिला तो 25-25 के 30-30 के 2 ले लेंगे, ठीक है? ओके। वाह 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 वाह। वेल डन, उनको आखिरी बात आपकी पसंद आई अमेजिंग है? अमेजिंग। आपके 25 वाली बात उन्हें यार पसंद ये आई? मैंने इनका तो पहली दफा सुना है, कमाल है, लेकिन कमाल आखिरी दफा नहीं, कमाल। बार बार सुनिएगा। नहीं नहीं, पहली दफा मैंने अच्छा, सुना अब है। हम आपको सुनना चाहेंगे। क्या? करने जाना है ब्रेक पर। वाह वाह। लेकिन जनाब एक खूबसूरत सॉन्ग होगा। सजना तेरा इश्क समझना आवे मेरा नया सॉन्ग है, यूके से मैंने उसका ट्रैक किया और मेरे साथ ये यहाँ साथ देंगे शामी। मैं यहाँ मैं क्लैपिंग करूंगा नहीं आप नहीं नहीं, थोड़ा सा साथ देना हल्का पड़ेगा। हल्का हल्का वो मगर दे हम देंगे। लास्ट में करेंगे, लास्ट में, वो मगरूर अदा पे करेंगे। ठीक है, नहीं मगरूर लड़ा पीछा छोड़ दे, मैं टिकटॉक देख देख के था गई। मगरूर लैला पे इन्होंने मेरे भाई की मेहंदी पे इतना अच्छा डांस किया था। अच्छा देना टिकटॉक पे डालूंगी। लैला मजबूर हो गई थी मेरे पास आने। ठीक है। तो जनाब कहीं मत जाइएगा, आप गाना देखिए मगरूर लैला का। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जो है, जिसने जो लोगों के दिलों में बसता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यासिर शामी मेरे साथ है, मेरे साथ मगरूर लैला यानी नगमाना जाफरी मौजूद है। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और सारी गुफ्तगू आगे शादी पे टूट जाती है। आज लगता है कि मैरिज ब्यूरो का कोई प्रोग्राम हम यहाँ पर कर नहीं, रहे हैं। शादी बहुत बड़ा मसला है शकील जाहिद साहब, ड्रामों में भी देखे तो यही मसला है। ये मसला है पाकिस्तान में शादी, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है जनाब। नहीं नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर उम्रों का, खानदान का, भी तुम सब इंसान हो, मुसलमान हो, क्या तुम इन जातों पातों में पड़ गए हो? क्या तुम इसमें पड़ गए हो कि जहेज कितना देगा? बाहर के मुल्कों में जहेजों का रवाज नहीं, अंग्रेज जहेज नहीं लेते, नगद ही देते। नहीं नहीं नगद नहीं देते। देखें बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला शादी है हमारे मुल्क में, मान लें आप खानदानों में। चलें चलें। हाँ जी। अच्छा यासिर, आप बताओ कि आप तो हमसे तो पूछ रहे हो शादी का, अपनी शादी के बारे में। हाय, ये देखा? बात आपने देखा पकड़ी कितनी है। खुश हुई? लड़की खुश हुई। नहीं, इनकी शादी में हम गाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह जी शादी कर लेंगे जल्दी। जिस तरह इनको गैरतमंद लड़का चाहिए ना, नहीं, अगर मुझे जरूरतमंद लड़की चाहिए। नहीं जी, मेरे साथ गैरतमंद भी मौजूद है और जरूरतमंद भी मौजूद है। कितने आपको जरूरतमंद चाहिए, उन्हें गैरतमंद चाहिए। तो ये मंद जो है ना, और ये दोनों चीजें बड़ी नायाब है पाकिस्तान में। हाँ जी, तो ये कोई न्याजमंद ही बता सकता है कि न्याजमंद ही बता रहे थे, तो न्याज से ही पूछ लेना जी। न्याज साहब बता- अच्छा कभी गाने शाने का भी शौक हुआ? अच्छा, गाना मैं गाता तो नहीं हूँ, वॉशरूम सिंगर ही हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ, चले 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 जनाब। नहीं समझे कि साबुन पड़ा है, तौलिया पड़ा है वॉशरूम में। अब वो टब की जगह कप रखा हुआ है आपने, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है। पानी की अच्छा, जगह वो गाना शायद इतना मैं ऐसे गाता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मोहब्बत आप कहें, ये हाँ, इतनी हाँ। बड़ी सिंगर नहीं, बैठी है, मतलब बड़ी नहीं, नहीं, नहीं। इनके सामने गाना एम ही तो- ऐसी हम, एम इनके ही है सामने बस। नहीं, इनकी साइड पे। नहीं, आप साइड पे मुंह करके गा लें चाहे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो एक हल्का सा गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है, वो भी अब कमर मुझे की तो है। ये भी नहीं पता वो सिंगर कौन सी है, आप बाद में बता दीजिएगा। अच्छा, मैं बता अगर दूंगा। पता हुआ तो ठीक है। तो वो था जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद जले, मेरे दिल में तेरी याद जले, कोई मेरी लगी को ना जाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। माशाल्लाह, वाह वाह मैं वाह, कहती हूँ वाह। कि कमाल है। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बात है, आजकल के जो क्या बात सिंगर है, हैं हैं? क्या बात है। लाइव नहीं गा सकते, क्यों नहीं करें? मेरी बात सुनिए, कोक स्टूडियो वाले सिंगर मुंह लाते फिरते हैं वहां से, ये जैसे इन्होंने सुर लगाया है अंदर और वो लिए ना वर्दे, ये नहीं ले सकते, पक्की बात है। थैंक यू जी। और बात ये कि अगर ये अगर आप सिंगर appreciate कर रही हैं अगर ये सिंगर बने तो मेरा ये भी ये पशीन को ये हिट हो जाएंगे। तो ये सिंगर ना बन के भी अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, देखिए नहीं, वो अपनी वो देखिए, तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं, वो इनके बात गाने ठीक हिट हो है, जाएंगे, इनके गाने देखिए हिट वो हो बात ठीक है जो ये कर रहे हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर मल्टीपल खसूसियात हो ना तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे मुल्क में कि बस इस पे छाप लग गई है, ये अब सिंगर है तो बस सिंगर ही रहेगा सारी उम्र, कुछ अच्छा, और आपने ना कोई करे। किसी और उसमें जाने की कोशिश नहीं की सिंगिंग के अलावा? मैं कोशिश कर रही हूँ ना अब क्राइम रिपोर्टर बनने की, अच्छा, क्या बात है जी। क्राइम करूंगी मैं अब।
اب نہیں کرائم کریں گے, کرائم والوں کو پکڑیں گے آپ؟ اگر کرائم رپورٹر نہ بنی تو کرائم کر لوں گی میں. ٹھیک ہے, تو کرائم کون سا کرنا ہے؟ کرائم میں بڑے میں نے سوچے میں اگر کہ میں کون سے کرائم کروں گی, یعنی کہ دنیا کی نظر میں کرائم ہوں گے لیکن میں انصاف کروں گی اس کرائم کو کر کے. اچھا انصاف کریں گے. ہاں کرائم کو ہوگا کرائم ان کے لوگوں کی نظر میں, کیونکہ یہاں پر جو حق کے لیے کسی کو مار دیتا ہے نا تو وہ تو قاتل ہی ہے نا, لیکن اللہ کی نظر میں وہ حق پر ہے. اب ایک جیسے بھی واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے ایک بچی کے ساتھ کسی نے کیا, میں اگر وہاں ہوں اور میرے پاس ہو گولی میں مار دوں اس بندے کو, اس سے وہاں پہنچنے دوں عدالت تک. نہیں قانون, ماورائے قانون تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں کون سے قانون ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی قانون نہیں اس ملک میں, بس ایک شادی کا ہی قانون ہے اور کوئی قانون نہیں. کوئی شادی کا بھی قانون کوئی نہیں. نہیں آپ کے لیے کوئی ڈھونڈتے ہیں, کوئی اچھا لڑکا نا, پیارا سا لڑکا ہو. نہیں پیارا بے شک نہ ہو, نہیں اللہ کو پیارا ہو جائے گا, اگر پیارا نہ ہو تو پیارا تھوڑا سا. دیکھیں کبھی بھی شکل کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کبھی بھی اپنا پیرامیٹر, کوئی بھی لڑکا اور لڑکی کسی کی شکل سے امپریس ہو کے شادی نہ کرنا, کیونکہ شکلیں 2 دن کی ہیں, کردار کام آتا ہے اور وفا کام آتی ہے. اور لڑکی کی حیا اس کے کپڑوں میں, زیور میں نہیں, جو زیور مانگتے ہیں, حیا اس کی وفا میں ہے اور شوہر کی عزت رکھنے میں حیا ہے. تو وہی لڑکی اچھی ہے اور وہی مرد بھی اچھا ہے جو حیا خدا کا رکھے. کیا بات ہے. اچھا کوئی نیا گانا آ رہا ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل آ رہا ہے جی, وہ آپ کو سنائیں گے آج. سنائیں ذرا. ابھی تو میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں, لیکن وہ آپ کو سنا دیں. ہم نے کون سا ورلڈ کپ دینا آپ کو, سنا دیں. نہیں ورلڈ کپ گلے کو تھوڑا سا ریکویسٹ کر لیں. میں نے لکھا ہے ابھی اس کا کرنا ہے, وہ بھی یہاں تو سنا, لیکن میں آپ کو ویسے سنا رہی ہوں, مجھے دردناک گانے زیادہ پسند ہیں. پٹی چٹی کرا لیں. نہیں یار دوسرے بولے کیا ہو گیا. ایک بے درد بے وفا نو پیار کر بیٹھا, میں لکھتی خود ہوں یہ بتا دوں. ایک بے درد بے وفا نو پیار کر بیٹھا, دلو دیوا دیاں دے اعتبار کر بیٹھا. ایک بے درد بے وفا نو پیار کر بیٹھا, دلو دیوا دیاں دے اعتبار کر بیٹھا. واہ واہ کیا بات. ہاں جی دل اعتبار کر بیٹھا. تو دل تو تم نے بیٹھے لکھنا تھا نا, بیٹھا. نہیں وہ دل کیونکہ مذکر ہے, دل مذکر ہے. اچھا دل کر بیٹھا, دل کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, آپ لکھتی تو دل کر بیٹھی لکھتا تو عجیب سا ہوتا. دل اعتبار کر بیٹھی, دل کر بیٹھا, دل یہ دل کی بات ہے. تو آگے بھی لکھ رہی ہوں میں اپنے. کہاں لکھتی ہیں یہ؟ جی میں اپنے خود ہی لکھتی ہوں کتاب. اچھا میں نے مغرور لیلا بھی خود لکھا, عمران خان کی نظمیں میں نے لکھی ہیں دیوار پہ کالم پہ. عمران خان صاحب کی محبت ملینز میں شعر بھی ہوئی, نظمیں جو میں نے لکھی, اور پھر سانگ بھی لکھا تھا. جیسے اس کی پر کوئی دردناک سٹوری سنائی ہے میں نے کہ عمران خان کے لیے جو میں سانگ لکھا, عمران خان نے امپروو کیا, اس کا ویڈیو بنا, اس کے ویوز 1 مہینے میں کتنے ہو گئے, پھر بعد میں انہوں نے کیسے اس کو کیوں ہٹا دیا. لو می لائک یو ڈو بھی میں نے آپ کا سنا ہوا ہے. کون سا لو می لائک یو ڈو؟ کون سے والا؟ ہالی ووڈ میں لو می لائک یو ڈو. وہ آپ نے لکھا تھا؟ کون سا؟ وہ گایا ہوا ہے لو می لائک یو ڈو. میں نے تو نہیں گایا. لو می لائک یو ڈو لا لا لو می. نہیں وہ میرا نہیں گایا. وہ آپ کا نہیں. اچھا اچھا ویسے لوگ نا بڑے سادے ہیں, سمجھتے ہیں کہ آپ نے گایا ہوا. میں نا کنسرٹ کری تھی پنجاب کالجز کے نا, تو وہاں میں گانا گاتی تھی, منی بدنام ہوئی. تو میرے سیکٹری کو ایک لڑکے کہتا یار تیری میڈم کے گانے تو بڑے ہٹ نے, بیڑی جلائے لے سارے گانے دے انہیں ہٹ نے, سنگر تیری گڈی نے پریڈو نے رکھی, سٹی آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ گڈی وہ بھی بڑا چلاک تھا, نہیں گڈی پریڈو بھی ابا جی لے کے گئے نے. کہتا منی بدنام تو بڑا ان کا ہٹ ہوا ہے. پھر میں نیچے اتری نا تو لوگوں جو فین تھے کہتے میڈم آپ کا گانا تو یہ بہت ہٹ ہے. ہم تو حیران ہیں. میں نے کہا کہ یہ گانا, میں کہتا آپ نے کب گایا؟ میں نے کہا میں تو ایسے ہی گایا تھا جا کے انڈیا, مجھے کیا پتا. بالکل بالکل, میں تو ایسے ہی بدنام ہو گئی. نہیں منی بدنام ہوئی گانا نا میرا ہی سمجھ رہا تھا جب میں نے گایا شو میں, تو کہتا ہے کہ یہ آپ کا. میں نے کہا ہاں, بس میں نے جلدی میں گیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ ہٹ ہو جائے گا اتنا. اچھا یاسر آپ کوئی فیوچر پلاننگ بتاؤ, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مطلب اللہ نے جتنی جہاں تک پہنچا دیا, مطلب. اچھا میں یہاں تک جو پہنچا ہوں شکیل بھائی, یہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں پہنچا. there is a planner, وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے پلاننگ کر کے یہاں تک پہنچا دیا. تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی پلان نہیں کی ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ عزت دے دے گا, اتنی شہرت دے دے گا, نام دے دے گا. تو یہ اللہ نے دیا ہے, تو آگے بھی اللہ ہی دے گا. تو میرا کوئی پلان نہیں ہے, بس جو اللہ کر دے گا وہی ٹھیک ہے.
मतलब अल्लाह पे छोड़ दिया, और हाँ, जो अल्लाह पे छोड़ते हैं फिर अल्लाह से अच्छा तो हमारे लिए फैसला कोई भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बस आप लगे रहें और अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह ताला करम कर देता है। उन लोगों के लिए जो मतलब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो आप फॉलोवर्स मतलब आपके हैं, जो आपको देख के काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैसेज एक ही है कि पॉजिटिव काम करें। नेगेटिविटी या गंद की एज बड़ी छोटी होती है, पॉजिटिव एज जो है ना ये बहुत बड़ी है। आप मतलब किसी का आपके पास राज आ गया है, कोई चीज आ गई है, तो कोशिश करें उसको छुपा दें, पर्दा दे दें उसको। अल्लाह ताला पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिविटी में काम करेंगे तो नाम भी बड़ा रहेगा और लॉन्ग टर्म इनिंग खेल सकते हैं अब आप। आगे नेगेटिविटी छोड़ दें, पगड़ियां ना उछालें किसी की, तो ये बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा। चंद व्यूज लेने के लिए आप किसी भी सेलिब्रिटी पर गंद उछालते हैं और उसके बाद आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन उस बेचारे की मुआशरे में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहती और वो सच पे मुबनी भी नहीं होती चीजें। तो कंटेंट कोशिश करें कि पॉजिटिव बनाएं, यही एक मैसेज है। पॉजिटिव काम और खुद भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव ही ना, माशाल्लाह आपके सारे जितना भी हमने देखा वो सारे पॉजिटिव। और दूसरी बात उसमें कि उसमें फन का जो है एक वो होता है, मजाक थोड़ा सा होता है, लोग खुश होते हैं उससे देखकर। जी। जैसे नासिर मदनी वाला था, आसिफ आशमी हम साहब, वो ह्यूमर, ये कॉमेडी क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं, तो वो लोगों को अच्छी अच्छा तो मैसेज भी पहुंच जाता है लोगों तक। ऐसे है थ्रू। पहले देखें, आप काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है जी। जो अब एक नई टर्म आ गई, इंफोटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंफोटेनमेंट। तो हम इंफोटेनमेंट पे काम कर रहे हैं। गुड, अल्लाह ताला आपको इसी तरह Thank you so जो much, है, thank you। और मजीद इज्जत दे और लोगों के दिलों में जो रिस्पेक्ट है वो और अल्लाह ताला बढ़ाए। तो हमने, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पर लगा के, लेकिन इनका गाना तो एक रह गया, वो तो हमने सुनना वो है। गाना हाँ जी, हाँ जी। सुनेंगे। वो गाने के बगैर हम नहीं जाएंगे, ना वो जाएंगी ना हम जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे बगैर अगर गाना नहीं सुना तो वो जनाब ऐसा है कि हमने ले ली है यहाँ से इजाजत, लेकिन लास्ट में हम सब इनके जो मगरूर लैला है जी। वो जो है इनके साथ हम परफॉर्म भी करेंगे। और जनाब इसके साथ ही शकील जाहिद को दीजिए इजाजत। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।